together. Radio 91, where it's always better. Where it's always better. Yo, सुबह का सूरज या शाम का रंग, we bring you joy हर जुबान का धन. Community की बात हम हैं आपके साथ, let's spread the love, चलो मिल के साथ. Tune in, turn up, दिल से बात करो. Radio मानू ताकि Guru FM के साथ चलो. Every voice counts, हर लम्हा यहाँ, चलो बात करके देखते हैं. Let's all shine on. Yo, let's all go. सेहत की बात और dreams to share. Radio Manu Nike Duro FM, we're always there. From unity to joy, we bring the light. Every word, every tune makes everything right. Listen up, it's time to unite. Radio Manu Nike Duro FM, shining bright. Dill se suno, we love and care. Chalo baat karke dekhte hain, let's take it there. So come along for the ride. Radio Manu Nike Duro FM, we're by your side. चलो बात करके देखते हैं. Your voice, your guide. This is Radio Manu 90.0 FM. चलो बात करके देखते हैं. ये है रेडियो मानू 90.0 FM, पेश है सूफी नामा. आदाब दोस्तों, आई एम योर होस्ट उमर and I welcome you to another episode of Sufi Nama, a show which journeys through the spiritual, intellectual and ethical wisdom of Islam and its Sufi Ikram. In today's episode, we turn our focus on the Islamic perspective on women's education. I'm really excited as we have our show's progenitor back with us today. Professor S.M. Azizuddin Hussain sir is here with us in the studio to enlighten us on this topic. Thank you. Before I head into this conversation, I'll quickly try to introduce our new viewers and listeners to sir. It's not funny or untrue when I say this man is a walking, talking digital library. With over 50 years of experience in teaching and research, he is a historian who has spent a lifetime conversing with manuscripts, movements, and now the wisdom of Sufi Ikram. A former director of the Raza Rampur Library, former head Department of History, Jamia Millia Islamia, and former chair professor of the Maulana Azad Chair in Manu. Currently scavenging the resources of Salarjung Museum to author yet another book. He is a scholar of medieval history and now commanding authority on the Sufi movement in the Indian subcontinent. We are delighted to have you back with us, sir. Thank you so much for gracing the radio. Thank you very much. Again. So, sir, पहला सवाल जो हमारे आज का टॉपिक है, इस्लामिक पर्सपेक्टिव ऑन विमेन एजुकेशन. तो जो पहली आयत नाजिल हुई, इक़रा, तो which literally translates to read. So how does Islam conceptually define education for women? And this is beyond a formal way of schooling, या उस तरह से हम लोग अगर ना बात करें, general concept of Islamic education for women, उसको आप किस तरह से define करेंगे सर? देखिए, जहाँ तक इस्लाम का ताल्लुक़ है तो इल्म का जैसे इक़रा है जी, अब ना इसमें मुज़क्कर है ना मुअन्नस है, बहुत खूब सर. है ना, जी सर. उसमें है ही नहीं. जी सर, बिल्कुल बिल्कुल ये तो सबके लिए है. बिल्कुल सर. और फिर इसको प्रॉफिट ने अपनी हदीस से क्लैरिफाई किया कि इल्म हासिल करना मर्द और औरत के लिए फ़र्ज़ है. बिल्कुल. और जैसे दूसरे फ़राइज़ हैं, नमाज है, रोज़ा है, ज़कात है, हज है, कि ये भी फ़र्ज़ है और इल्म भी हासिल कर. एक और हदीस प्रॉफिट ने की है, उतलुबुल इल्म मिनल महद इलल लहद, इल्म हासिल करो गहवारे से लेके और कब्र तक जाने तक. आप देखिए, दूसरे फ़राइज़ हैं, नमाज 5 वक्त की है, रोज़ा साल भर में 1 महीने का है, हज एक दफ़ा है, वो भी कंडीशन के साथ, अगर आपके पास पैसा है वो ये सब है. लेकिन इल्म के लिए कोई एग्जम्पशन गरीब अमीर किसी के लिए है ही नहीं. पैदा होने से लेके मरने तक, कब्र तक जाने तक इल्म हासिल करना. तो ये बिल्कुल, इसमें भी ना मुज़क्कर है
न मोहन्नस है कि किसके लिए है हदीस, सबके लिए है। के लिए सब तो ये बाद में डिवीज़न हमने बाद में किया, वो बनाए गए। बनाए। सो सर जैसे आया अब ये हुआ तो व्हाट वर द विजिबल आउटकम्स व्हेन वुमेन एजुकेशन इज कंसर्न्ड इन द अर्ली इस्लामिक एरा? देखिए मैं आपको बताऊँ कि दौर जाहिलियत जी में औरतों की कोई पोजीशन नहीं थी, जी न उनको इस काबिल समझा जाता था जी कि वो कोई इल्मी काम करें। जी ये इस्लाम था जिसने औरत को एक मकाम दिया बिल्कुल सर। और उनको नीचे से उठा के ऊपर लेके आया इस्लाम। जी और जब इस्लाम ऊपर लेके आया, जी अब कुरान सबके लिए ओपन है। बिल्कुल सर। इस्लाम एक ऐसा मज़हब है जिसमें मीडिएटर नहीं है राइट, बिटवीन गॉड एंड द फॉलोअर, डायरेक्ट कनेक्शन है ना, जी कि कोई पंडित नहीं है, कोई पोप नहीं है, कोई वो नहीं है, बल्कि ये कुरान मौजूद है, पढ़ो और इस पे अमल करो। तो यही बात मर्द और औरत के लिए है कि भाई कुरान पढ़ो। और इसीलिए जो फैमिली थी प्रॉफिट मोहम्मद की, जी सर। जो जिनको अहले बैत हम कहते हैं, जी उसमें उनकी नवासी हैं जी हज़रत ज़ैनब। जी वो औरतें जब जमा हो जाती थी तो तफसीर करती थी कुरान की। हज़रत फातिमा को जहेज़ में प्रॉफिट ने चक्की दी थी, तो चक्की में जब गेहूँ पीसती थी या जो भी अनाज पीसती थी राइट, तो उनके बच्चे हसन हुसैन और फातिमा उम्मे कुलसूम बैठी हुई होती थी, तो वो कुरान भी सुनती थी और उसकी तफसीर भी सुनती थी। तो ये उस कल्चर का हिस्सा था, इस्लामिक कल्चर का, कि जो भी आप काम कर रहे हो जी आप उसको इस्लाम को याद करो, उसको रिवाइव करो, जी उसको बार बार उसको दोहराओ, ताकि जो बच्चे हैं उनके अंदर भी ये समझ पैदा हो सके। सर क्या ये कहना सही होगा कि अगर एक ख़वातीन को हम एजुकेट कर रहे हैं इन इस्लाम, सो इट इज़ इनडायरेक्टली एजुकेटिंग अ होल जनरेशन? हाँ, देखिए अगर आप 7th सेंचुरी AD को लें, जी उसमें औरतें मुफस्सिरा हैं जी और मुहद्दिसा हैं और इतने पाए पे पहुँची कि उलमा, मेल उलमा उनके दर्स में शामिल हो रहे। मतलब ये मेयार आ गया जी कि औरतें जो है तफसीर बयान कर रही हैं और मर्द सुन रहे हैं वो तफसीर। यानी ये तो 7th सेंचुरी में 14th सेंचुरी की अलीगढ़ के एक सूफ़ी हैं शाह जमाल, उनसे मुतालिक एक किताब है अखबारुल जमाल, जो मौलाना आज़ाद लाइवी के मैनस्क्रिप्ट सेक्शन में मौजूद है। उसमें लिखा है कि मुरीदान ऊ आरिफात कामिलात बुदन, कि उनकी जो फीमेल मुरीद थी वो आरिफ कामिल थी। तो ये सूफिया ने इनको, क्योंकि इसलिए था कि अगर औरत पढ़ी लिखी है जी तो बच्चे भी पढ़े लिखे होंगे। बिल्कुल सर। क्योंकि देखिए बाप से तो बहुत साबका बाद में पड़ता है, पैदाइश से लेकर 3-4 साल की उम्र तक माँ के पास रहता है बच्चा। तो अगर वो पढ़ी लिखी होगी तभी वो तो बच्चा भी पढ़ा लिखा होगा, वरना बच्चा भी इग्नोरेंट होगा। जी अगर माँ इग्नोरेंट है तो माँ का आलिम का होना आलिमा होना बहुत ज़रूरी है बिल्कुल कि वो अपने बच्चों को, और यही हम देखते हैं हज़रत फातिमा ज़हरा का भी, प्रॉफिट की बेटी का, कि वो अपने बच्चे हसन हुसैन और फातिमा और उम्मे कुलसूम को अपना ये सब चीज़ें बताती थी, जी जी पढ़ती थी और उनको याद कराती थी। बिल्कुल सर। आई थिंक वी गॉटन ऑफ टू अ वेरी गुड पॉइंट। अभी इसको और एक्सप्लोर करेंगे इस टॉपिक को। यहाँ पे हो चुका है वक्त छोटे से एक ब्रेक का। दोस्तों हम ब्रेक के बाद आपके साथ फिर हाजिर होंगे, बने रहिए हमारे साथ ऑन रेडियो मानू 90.0 FM। You are listening to Sufi Nama on Radio Manu 90.0 FM. ये है रेडियो मानू, एक कम्युनिटी रेडियो स्टेशन। So join the wave, come along for the ride. Radio Manu 90.0 FM, we're by your side. चलो बात करके देखते हैं. Your voice, your guide.
आइए अब सुनते हैं हिस्ट्रीज मिस्ट्रीज। आदाब दोस्तों, हिस्ट्रीज मिस्ट्रीज में आपका खैर मकदम है। दोस्तों, क्या आप जानते हैं कि बर्लिन वॉल का गिरना एक मिस कम्युनिकेशन का नतीजा था। दोस्तों, सेकंड वर्ल्ड वार के बाद 1949 में जर्मनी को 2 हिस्सों में बांट दिया गया था। इस जर्मनी सोवियत यूनियन को दे दिया गया, जो बना जर्मन डेमोक्रेटिक रिपब्लिक। वहीं वेस्ट जर्मनी, जो यूनाइटेड स्टेट्स, ग्रेट ब्रिटेन और फ्रांस के कंट्रोल में था, जिसे रीयूनाइट करके फेडरल रिपब्लिक ऑफ जर्मनी का नाम दिया गया था। इस तरह ये 2 अलग अलग मुल्क बने। दोस्तों, इस बंटवारे ने जर्मनी के कैपिटल बर्लिन को भी 2 हिस्सों में तकसीम किया था। रोजगार की तलाश में बड़े पैमाने पर लोग ईस्ट से वेस्ट जर्मनी जाने लगे। इस माइग्रेशन की वजह से ईस्ट जर्मनी की इकोनॉमी बर्बाद हो रही थी। इसलिए जर्मनी की सोवियत सरकार ने इस ब्रेन ड्रेन को रोकने के लिए 12 और 13 अगस्त 1961 की रात बर्लिन में एक दीवार खड़ी कर दी, जिसे बर्लिन वॉल के नाम से जाना जाता है। मगर दोस्तों, 1989 में लगातार हो रहे आंदोलन और यूरोप में हो रहे पॉलिटिकल बदलाव ने इस जर्मनी की सरकार पर दबाव डाला कि वो वेस्ट जर्मनी जाने वाले लोगों के लिए ट्रैवलिंग रेगुलेशन में बदलाव लाए और इसे आसान करे। जनता के दबाव में इस जर्मनी की सरकार ने नए रेगुलेशन बनाए जो पहले से ज़्यादा आसान थे, जिसे फेज वाइज लागू किया जाना था। इस नए रेगुलेशन की जानकारी प्रेस को देने की जिम्मेदारी सोवियत सरकार के स्पोक्स पर्सन गुंटर साबोस्की को दी गई। दोस्तों, साबोस्की से यहाँ एक गलती हो गई कि उन्होंने इस नए ट्रैवल रेगुलेशन के दस्तावेज को ठीक से पढ़े बिना 9 नवंबर 1989 को एक प्रेस कॉन्फ्रेंस में सरकार के इस नए रेगुलेशन की जानकारी मीडिया को दी। प्रेस कॉन्फ्रेंस में साबोस्की ने ये अनाउंस किया कि अब यहाँ की जनता ईस्ट जर्मनी से वेस्ट जर्मनी आसानी से सफ़र कर सकती है। उनके सफ़र के रूल्स को आसान किया जा रहा है, जो कि ठीक था। दोस्तों, ये रेगुलेशन वैसे तो 10 नवंबर से पासपोर्ट दफ्तर खोलने के बाद लागू होने थे, मगर इस प्रेस कॉन्फ्रेंस में जब एक जर्नलिस्ट ने पूछा कि ये रूल्स कब लागू किए जाएंगे, तब इसके जवाब में साबोस्की ने यह कह दिया कि अभी इसी वक्त से। मीडिया ने इस खबर को ब्रॉडकास्ट कर दिया कि बॉर्डर खोले जा रहे हैं, अब लोग आसानी से बॉर्डर के उस पार जा सकते हैं। ये खबर जंगल की आग की तरह फैल गई और जल्द ही पुरजोश हुजूम अलग अलग चेक पॉइंट्स पर लाखों की तादाद में बर्लिन वॉल के दोनों तरफ इकट्ठा होना शुरू हो गए, जो बॉर्डर खोले जाने की खबर सुनकर वहां आए थे और बॉर्डर के दूसरी तरफ जाना चाहते थे। यहाँ मौजूद गार्ड्स भी कंफ्यूज थे कि उन्हें क्या करना है, लोगों को रोकना है या नहीं। और आखिरकार 9 नवंबर 1989 की रात बॉर्डर खोल दिए गए और फिर बर्लिन की दीवार गिरा दी गई। लोगों ने बॉर्डर पार किया और अपने अजीजों को गले से लगा लिया। और फिर लगभग 11 महीनों के बाद 3 अक्टूबर 1990 जर्मनी फिर से रीयूनाइट हो गया और दोबारा एक मुल्क बन गया। दोस्तों, देखा आपने कैसे एक छोटे से मिस कम्युनिकेशन की वजह से लगभग 3 दहाइयों से खड़ी दीवार गिरा दी गई। आज हिस्ट्रीज मिस्ट्रीज में इतना ही। फिर आपसे मुलाकात होगी एक नए हिस्टोरिकल टॉपिक के साथ। तब तक के लिए मुझे यानी अपने दोस्त उबैद को दीजिए इजाज़त। आदाब। You were listening to History's Mysteries. सेल्स, मार्केटिंग और ब्रांड प्रमोशंस के लिए हमसे राब्ता करें radiomanu@manu.edu.in पर। So join the wave, come along for the ride. Radio Manu 90.0 FM, we're by your side. चलो बात करके देखते हैं। Your voice, your guide. You are listening to Sufi Nama on Radio Manu 90.0 FM. दोस्तों, वेलकम बैक। वी आर इन कॉन्वर्सेशन विद प्रोफेसर अजीजुद्दीन हुसैन साहब एंड हम बात कर रहे हैं इस्लामिक पर्सपेक्टिव ऑन वुमेन एजुकेशन। सर, जैसे आपने बताया अर्ली इस्लामिक हिस्ट्री के बारे में, किस तरह से एजुकेशन को, तालीम को तवज्जो दी जाती थी, तो ये क्या हुआ, हाउ डिड इट टर्न कि आज जिस रीज़न की वजह से जिस मैसेज को लेके इस्लाम आया एंड जिस सोशल कॉज के लिए इस्लाम आया, जिस विमेन अपलिफ्टमेंट के लिए इस्लाम आया, एंड तो आज वही एक फैक्टर सबसे ज़्यादा सफ़र क्यों कर रहा है? देखिए, मैं बताऊँ, और इलिटरेसी क्यों है औरतों में इतनी ज़्यादा? जितने लोगों ने जी औरत पे लिखा है, जी उन सब ने यही सवाल कायम किया जो आप सवाल कर रहे हैं कि क्यों हो गया।
और और वो कहाँ हुआ हाँ कहाँ वो भी जानना जरूरी और ये लेकिन जवाब कोई नहीं दे रहा। यानी ये जो है आपकी अलीगढ़ की पहली चांसलर सुल्तान जहाँ बेगम 1920 से 2030 तक चांसलर भी बहुत काबिल औरत थी। उन्होंने भी ये सवाल कायम किया कि आखिर ये हमने गलती कहाँ की। देखिए गलती हमने वहाँ की कि प्रॉफिट के बाद खिलाफत वजूद में आई, फिर 661 में इसको मलूकियत में, बादशाहत में, हेरिटरी किंगशिप में तब्दील कर दिया गया और अमीर माविया ने अपने बेटे यजीद को अपना वारिस बना दिया और वो हो गए अपना खलीफा। और वो उसूल जो इस्लाम ने कायम किया था इंतखाब खलीफा का, वो ख़त्म कर दिया गया। और रोमन पॉलिटी, सोशल स्ट्रक्चर, इकोनॉमिक स्ट्रक्चर पूरा हमने अपना लिया। तो वो जो हम कहते हैं कि साहब अंग्रेज़ों ने डिवाइड एंड रूल की पॉलिसी अपनाई, अंग्रेज़ों ने नहीं। जितनी बादशाहत हैं, चाहे वो मुस्लिम किंगशिप हो या हिंदू किंगशिप हो या क्रिश्चियन किंगशिप हो या ज्यूइश किंगशिप हो, उस सब में यही हुआ कि डिवाइड एंड रूल। तो उसमें सबसे बड़ा नुकसान औरतों का हुआ कि औरतों को इस हल्के से निकाल दो तो सारी दौलत, सारी जायदाद, सारी चीज़ें, हर चीज़ तुम्हारी हो जाएगी। तो वहाँ से औरतों का सवाल शुरू हुआ और औरतों को हरम में दाखिल कर दिया गया और उनको एक तरीके से प्लेजर का सोर्स बना लिया गया। हरम क्रिएट हो गए और उसमें उनको सारी आराम व आसाइश सब उन्हें दी जाती थी। बेगम सुल्तान जहाँ बेगम ने अपनी तकरीर में एक बात कही कि तुम, यानी तुम से मतलब मुसलमान औरतें, तुम इल्म से महरूम हो और तुम्हारी दूरी हो गई इल्म से, और आज तुम्हारी हालत ये है कि तुमको ये पता भी नहीं है कि तुमसे तहसीली इल्म का हक छीन लिया गया। बिल्कुल बिल्कुल। तो ये हालत हुई कि सुल्तान जहाँ बेगम जो है वो 1914 में ये बात कह रही है बिल्कुल कि तुम्हें ये पता ही नहीं है कि तुम्हारे पास ये चला गया है। बादशाहत ने वो एनेस्थीसिया औरत को दिया, मुस्लिम औरत को, कि उसको पता ही नहीं चला कि ये हक कहाँ से, क्योंकि उसमें जेवर है, दौलत है, बेहतरीन कमखाब के जोड़े हैं, वो उसमें उसे मस्त कर दिया गया और इल्म उससे ले लिया गया कि बस इल्म छोड़ दो, तुम इल्म से तुम्हारा कोई मतलब नहीं है। राइट सर। सो इसी तो को इसके लिए बेसिकली किंगशिप इज, मुस्लिम किंगशिप इज रिस्पॉन्सिबल फॉर इट। रिस्पॉन्सिबल फॉर दिस। देखिए मुग़ल एम्पायर में 3 बायोग्राफिकल अकाउंट्स हैं नोबिलिटी के, ज़ख़ीरतुल ख़वानीन, मासरुल उमरा और तज़किरतुल उमरा। इसमें एक औरत का जिक्र नहीं है 3 बायोग्राफिकल अकाउंट। शेख अब्दुल्लाह मुहद्दिस देहलवी ने उलमा और सूफिया की 16वीं सेंचुरी में 12वीं से लेकर 16वीं तक बायोग्राफीज दी। कुल 5 औरतों की बायोग्राफीज हैं, मतलब 500 साल में कुल 5 औरतें थीं। जी जी जी। तो हमने उनको इस लेवल तक पहुंचा दिया। राइट सर। तो अब जैसे आप औरतों की मेंशन की बात कर रहे हैं, सो क्या रिलीजन हैज़ बीन मिसयूज फॉर सेलेक्टिवली कोटिंग द कुरान एंड डिस्करेजिंग वुमेन्स एजुकेशन? देखिए इसमें सबसे बड़ा उन्होंने जो ये किया काम, जी वो ये किया कि उन्होंने कहा कि तुम घर में बैठो, घर में बैठो 4 दीवारी के अंदर। जी जी। ये नहीं कहा कि हम तुमसे इल्म वापस ले रहे हैं 4000 में। अब पहले क्या उसको सवाब से इक्वेट करने से भी वो उसका डैमेज हुआ ने कहा है? पर्दा करो, तुम अपने जी, अंदर जी, रहो, जी, ना महरम के सामने मत आओ। यानी पहले प्रॉफिट के ज़माने में औरतें नमाज जुमा में शामिल होती थी, 5 वक्त की नमाज़ों में शामिल होती थी, ईदैन की नमाज़ों में शामिल होती थी, खुतबा सुनती थी। वो फिर ख़त्म कर दिया गया कि नहीं, औरतें अब न 5 वक्त की नमाज में आएंगी, न जुमे में जाएंगी, न ईदैन में आएंगी। तो जब आपने खुतबे का उनसे बंद कर दिया गया, खुतबे से महरूम कर दिया गया, अरे भाई आप किताब ही ले लीजिए किसी से, तो उसकी नॉलेज क्या बढ़ेगी। आज आपका AMC है, ये नॉलेज को बढ़ा रहा है, इसको आप बंद कर दीजिए IMC को, तो नॉलेज ख़त्म हो जाएगी। कि जो नए टूल्स हैं एजुकेट करने के लिए, अब ये आप रेडियो के ज़रिए, अपने इस मानू के रेडियो के ज़रिए या जो आपका ये चैनल्स हैं, इसके ज़रिए इल्म को आम करेंगे, इसको बंद कर दीजिए तो लोग महरूम हो जाएंगे।
तो उनको कहा कि तुम घर की चारदीवारी में बैठो, इसी से तुम्हें जन्नत मिलेगी। बिल्कुल 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 वही मिस कोटेशन हाँ, यस, एंड अब यस, अपने मेल ईगो को सेटिस्फाई yes, करने के लिए yes, मिस इंटरप्रिटेशन yes. और वो उस चीज़ को बजाय कि आप उसको रोकें वहाँ पे फुल स्टॉप लगाएं, वो जनरेशन बाय जनरेशन वो और बढ़ता गया। यानी प्रॉफिट का जब डिस्कशन जी क्रिश्चियन से हुआ है, जी मुबाहिला कहलाता है वो, जी तो उसमें प्रॉफिट अपनी बेटी को लेके गए, जी अपने नवासों को लेके गए, जी अपनी नवासियों को लेके गए। जी अरे भाई वो ले जा सकते हैं, हमको क्यों मनाती कर दी गई कि नहीं अब आप बिल्कुल औरत को नहीं ले जाएंगे, बिल्कुल कोई सेमिनार हो रहा है जी वो घर में ही रहेंगी। जी 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 तो अब दिस इज़ वेरी अनफॉर्चुनेट बट दैट्स द रियलिटी, बट आई थिंक इट्स टाइम वी हैव टू डू समथिंग, वी हैव टू स्टेप अप एंड वी हैव टू चेंज दैट रियलिटी एंड वी हैव टू स्टार्ट विद इन। यहाँ वक्त हो चुका है दोस्तों एक छोटे से ब्रेक का। ब्रेक के बाद हम फिर से हाजिर होंगे। बनी रहिए हमारे साथ ऑन रेडियो मानू 90.0 FM। आप सुन रहे हैं सूफी नामा रेडियो मानू 90.0 FM पर। This is Radio Manu, a community radio station. So join the wave, come along for the ride. Radio Manu 90.0 FM, we're by your side. चलो बात करके देखते हैं. Your voice, your guide. ये है रेडियो मानू 90.0 FM। आइए अब सुनते हैं द माइंडफुल मिनट। Abigail said, if you want your children to turn out well, spend twice as much time with them and half as much money. अपने बटुए को पैसों से भरने की बजाय अपनी अलमारी को अच्छी अच्छी किताबों से भर लो। जॉन सी। विनोबा भावे, जिन्होंने धरती के लिए या कह लीजिए भू सत्याग्रह किया था, उन्होंने कहा है, द्वेष बुद्धि को हम द्वेष से नहीं मिटा सकते, प्रेम की शक्ति ही उसे मिटा सकती है। This is Radio Manu 90.0 FM. You were listening to the Mindful Minute. For sales, marketing and brand promotions, write to us on Radio Manu at manu.edu.in. So join the wave, come along for the ride. Radio Manu 90.0 FM, we're by your side. चलो बात करके देखते हैं. Your voice, your guide. आप सुन रहे हैं सूफी नामा रेडियो मानू 90.0 FM पर। दोस्तों वेलकम बैक। वी आर इन कॉन्वर्सेशन विद प्रोफेसर SM अजीज़ुद्दीन हुसैन साहब और हम बात कर रहे हैं इस्लामिक पर्सपेक्टिव ऑन वुमेन्स एजुकेशन। तो सर, हमने जैसे इस्लामिक हिस्ट्री समझी और ख़वातीन की तालीम का जो क्या सिचुएशन रहा है, सजायो रहा है, किस तरह से वो डिप्लीट हुआ, वो हमने समझा। अब आते हैं हम लोग इंडियन सब कॉन्टिनेंट के पास, जहाँ पे सूफिया ट्रेडिशंस हैं। हाउ डिड सूफी ट्रेडिशंस अप्रोच वुमेन्स एजुकेशन एंड स्पिरिचुअल ग्रोथ? देखिए, इसके सबसे पहले जिन्होंने फ़िलॉसफी पे काम किया, जी सूफी फ़िलॉसफी, वो इब्न अरबी हैं जी और उन्होंने फुतवात मक्किया लिखी जी और भी काम किया। उन्होंने कहा कि ये मर्द औरत का कॉन्सेप्ट कहाँ से आया। राइट। अरे भाई, इल्म हासिल करना है जी जी तो दोनों बराबर हैं, दोनों। और उनकी खानकाह में सब लोग बैठते थे और सब उनके आवाज़ को सुनते थे, जो डिस्कशन होता था उसमें पार्टिसिपेट करते थे। और उन्होंने अपनी खानकाह के 14 मुरीदों को खिरक़े खिलाफत दिया
14, जिसमें से 13 औरतें थीं और 1 मर्द था। ओह तो ये सूफिया का कारनामा है। उलमा से बिल्कुल मुख्तलिफ हैं सूफिया। हज़रत निज़ामुद्दीन औलिया से पूछा किसी ने उनके डिस्कशन में कि मर्द और औरत में क्या फ़र्क है, तो हज़रत निज़ामुद्दीन औलिया ने इसकी मिसाल ऐसे दी कि जब तुम जंगल में जाओ और शेर आ जाए तो क्या तुम ये देखोगे कि शेर है या शेरनी है? सो वेल पुट सर, सो वेल। तो उन्होंने कहा दोनों बराबर है, कोई फ़र्क नहीं है मर्द और। जी जी। सर, आर देयर एग्जांपल्स ऑफ women saints or spiritually linked, spiritually inclined women in Sufi history or currently in ये activity? दक्कन में बहुत है अच्छा। और यहाँ खिरक़े खिलाफत दिया हाँ हाँ सूफियों ने जी और सज्जादा नशीन बनाया। जी जी लेकिन इसमें भी वही हुआ जी कि बाद में सज्जादा नशीनी सूफिया ने भी बाद की स्टेज में यानी 19वीं सेंचुरी में जाके सिर्फ मर्दों तक महदूद कर दी। और वो स्पिरिट जो सूफिया लेके आए थे अपने अरबी से उसको ख़त्म कर दिया गया। लेकिन 18वीं सेंचुरी तक इनके यहाँ भी तमाम औरतें उसका हिस्सा रहीं खानका की एजुकेशनल लाइफ का। और बड़े बड़े मदारिस उन्होंने पाए, उन्होंने काम किया, तफसीर पे काम किया, हदीस पे काम किया, इन तमाम चीज़ों पे काम किया, किताबें लिखी। इसीलिए हम देखते हैं कि जितना 19वीं सेंचुरी में हैदराबाद की वीमेन ने काम किया, नॉर्थ में इतना वीमेन काम नहीं कर सकी, क्योंकि हैदराबाद वो डेक्कन के जो सूफिया थे इन्होंने औरतों को बहुत प्रमोट किया। सर, अगर फीमेल ऑथर्स थीं, सूफिया अगर फीमेल ऑथर्स थीं तो वो किस बारे में लिखती थीं? व्हाट वर देयर पॉइंट ऑफ नैरेटिव क्या था? चाहे इस्लाम पे, तमाम चीज़ों पे, अच्छा, हर चीज़ पे लिखती। वो एक उसको ब्रेक करने के लिए, स्टीरियोटाइप को ब्रेक करने के लिए। बिल्कुल ओके, बिल्कुल। वो शायर थी, जी, अच्छा, शेर कैसी थी, अच्छा। और क्या। सर, अब बढ़ते हैं हमारे आखिरी कुछ सवाल के पास। तो व्हाट वुड बी एन ऑथेंटिक इस्लामिक मॉडल ऑफ वुमेन्स एजुकेशन इन टुडेज सोसाइटी? देखिए आज वही मसला है कि अभी एक बड़ी तादाद है मुसलमानों की फीमेल जो एजुकेशन से बहुत दूर है। मतलब अगर आप कस्बात में जाएं, गांव में जाएं, तो लड़कियों की कोई तालीम है ही नहीं। बिल्कुल। तो आज फिर वही उसी तहरीक की ज़रूरत है कि जो सूफिया ने किया शुरू की थी करने का। और औरतों को एक प्लेटफॉर्म दिया था जी, जिससे प्रमोशन हुआ। तो मैं समझता हूँ आज भी उसी की तहरीक की ज़रूरत है कि उनको प्रमोट करना चाहिए ताकि वो भी एक्टिव लाइफ लीड कर सकें। आप सर जैसे सलारजंग म्यूजियम में अभी रिसर्च कर रहे हैं, तो उसमें आपको कुछ नई तहकीक हो पाई कि आप एनी न्यू फाइंडिंग्स दैट यू हैड रिसेंटली अब देखिए जो ऑन वुमेन्स एजुकेशन इन इस्लाम? उनके जो तमाम वो हैं किताबें, जी वो एड्रेस हैं सबसे, जी मर्द औरत सबसे। जी वो कर रहे हैं, अपने लिख रहे हैं जी और ऐसे लिख रहे हैं जैसे चक्की नामा लिख दिया। तो ये स्पिरिट उन्होंने ली हज़रत फातिमा की चक्की से जी। अच्छा, ओ कि जैसे वो कुरान पढ़ रही हैं, तफसीर कर रही हैं, तो ये उसमें कलमे की बात कर रहे हैं, ये उसमें और फंडामेंटल्स ऑफ इस्लाम की बात कर रहे हैं कि भाई जब तुम चक्की चलाओ तो इस चक्की नामे को पढ़ो ताकि घर के लोग सुने, ताकि उनको एजुकेट करने में आसानी हो। बिल्कुल। ऐसी चरखे में जी जी जी। एनी स्पेसिफिक वर्क दैट यू जो आपको लगा हो, जो आपको स्ट्राइक करा हो, जो आपको बहुत अपीलिंग लगा हो व्हाइल डूइंग योर रिसर्च एट द सलारजंग म्यूजियम? और ये बुरहानुद्दीन जानम का चक्की नामा है, जी, इट इज़ फुल ऑफ इंफॉर्मेशन। राइट। बहुत उन्होंने बातें कही हैं समझाने की, जी मतलब एक इनडायरेक्ट तरीक़ा है कि समझाने का। और मुझे तो ये मैंने एक आर्टिकल भी लिखा है कि महात्मा गांधी ने जो चरखा कांग्रेस के मूवमेंट में लिया है आज़ादी के, वो इसी दक्कन से लिया, सूफिया की चरखे नामे से। हाँ, नाइस नाइस नाइस। तो सर, जाने से पहले हम एक सवाल आपसे रखना चाहते हैं कि आप जैसे एक ज़ख़ीरा हैं इंफॉर्मेशन का सूफिज़म पे, सो आपका किधर से सोर्स करते हैं आप अपनी इंफॉर्मेशन सूफिज़म के ऊपर? वेयर आर दीज अवेलेबल? देखिए एक बात मैं बताऊँ जी कि जब ब्रिटिश स्कॉलर्स हिंदुस्तान आए और उन्होंने काम किया हिंदुस्तान में, जी जी जी। तो उन्होंने सूफिया को बिल्कुल आउट कर दिया। अच्छा, हाँ, अपने पूरे उससे। इंटरेस्टिंग फैक्ट। हाँ, उन्होंने, उसकी कुछ वजह? हाँ, उसकी वजह है हाँ, सूफीज़ ने हारमोनी की बात की, तो वो इनके इंटरेस्ट के खिलाफ, ग्रेट पॉइंट सर, राइट। उनके इंटरेस्ट के खिलाफ था। जी जी जी। लिहाजा उन्होंने कहा कि इसको तो बिल्कुल एक तरफ
यानी इसी हैदराबाद में जी एक अंग्रेज़ था, मैंने नाम मेरे नहीं, वहाँ लखनऊ में राइट एक अंग्रेज़ था और उनके मुंशी जो थे वो मुसलमान थे। तो उन्होंने कहा कि वहाँ चौक में किताबें बिक रही, तो तुम वहाँ से किताबें ले आओ, ख़रीद लो, पैसे मैं दे दूँगा, जो सूफीज़्म पे हो वो तुम रख लेना, बाकी मुझे दे देना, है ना, क्योंकि वो बेकार है राइट हमारे लिए। राइट राइट तो उन्होंने जो भी किताब लिखी हिस्ट्री ऑफ इंडिया, उसमें सूफ़ी नाम की कोई चीज़ नहीं है। दिस इज सच अ न्यू पर्सपेक्टिव तो इसकी मतलब अपना प्रोपेगेंडा इम्पोज करने के लिए उन लोगों ने सूफिया हिस्ट्री को एकदम स्क्रैच कर दिया, मतलब स्क्रैप कर दिया, आउट कर दिया। आउट कर दिया, बिकॉज वो उसकी उनकी आइडियोलॉजी के साथ अलाइन हाँ। होता था। राइट अच्छा, अब एक एक चीज़ तकलीद की, मुसलमानों में है तकलीद, जी हिस्टोरियंस में भी तकलीद है। जी जी तो जो कॉलोनियल इंडियन हिस्टोरियंस थे, उन्होंने अंग्रेज़ों की तकलीद की। उन्होंने जो हिस्ट्री लिखी हिंदुस्तान की, जी जी उन्होंने भी सूफीज़ को आउट कर दिया। राइट 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 तो अब सवाल ये है कि काम कौन करे। लेकिन जब अलीगढ़ का डिपार्टमेंट बना, अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी का, तो वहाँ दो लोगों ने इस पर काम किया, प्रोफेसर मोहम्मद हबीब, और बल्कि तीन, प्रोफेसर खलील अहमद निज़ामी और प्रोफेसर सैयद अख्तर अब्बास रिजवी। इन लोगों ने काम किया जी और काफ़ी काम किया और पूरा एक पूरा थीम लेके आए जी और उसमें मिडीवल इंडियन हिस्ट्री में एक अच्छा मुकाम दिया। जी जी लेकिन क्या हुआ उनके बाद, फिर वो चीज़ ख़त्म हो गई नहीं हो पाई। और उसको कोई काम करने वाला नहीं रहा। लेकिन इनके यहाँ भी फीमेल एजुकेशन पे कोई एक जुमला नहीं मिलेगा। अच्छा प्रोफेसर मोहम्मद हबीब, प्रोफेसर के निज़ामी और प्रोफेसर, क्या इन्होंने फीमेल एजुकेशन के लिए क्या किया? बिल्कुल ब्लैंक। ओके, तो ये हमारे आज के टॉपिक के साथ थोड़ा हाँ, सा हाँ। इम्पैक्ट कर रहा है। राइट अच्छा, अब क्या रह गया? अब तो सोर्सेज ही रह गए। जी 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 आपको कहीं पका पकाया माल तो मिलेगा नहीं, जी जी, वो आपको खरीदना पड़ेगा। वो आपको सोर्सेज पे जाना पड़ेगा। जी इसीलिए मेरी जो किताब सूफीज़ ऑफ डेक्कन आई, तो उसको जिन्होंने रिव्यू किया है, जी तो उन्होंने कहा इनकी बिब्लियोग्राफी अजीब है, इसमें मॉडर्न वर्क्स है ही नहीं, सब सोर्सेज हैं 485। तो इतने सोर्सेज हैं जी जी सूफीज़्म पे कि जिस पे अभी तक काम नहीं हुआ। राइट ओके ज़रूरत इस बात की है कि इस पे काम हो। उनके मलफूज़ात हैं, तज़किरे हैं और उनके ख़ुतूत हैं, ये तमाम चीज़ें हैं, लेकिन जितना काम होना चाहिए, इसलिए कि उसके लिए तारीख़ की समझ और फ़ारसी की समझ, बहुत ज़रूरी। दो चीज़ों की ज़रूरत जी। है। इसमें एक और नुकसान हुआ कि जब हमारे उर्दू वालों ने सूफिया पे लिखना शुरू किया, तो उन्होंने इतना एग्जैजरेशन से काम लिया और बजाय उनके जो रियल लाइफ थी, जो रियलिटी थी, जो उनका रियल कंट्रीब्यूशन था, वो करामात और ये सब और ये तमाम चीज़ों पे चले गए। वो बजाय इसके कि वो एकेडमिक एक हाँ, सोर्स बने, तो वो एक हाँ। मिस्टिकल सोर्स बन वो बन गए स्पिरिचुअल मिस्टिकल। और उन्होंने जी एक नुकसान ये पहुंचाया उन उर्दू तस्करों ने कि अंग्रेज़ हिस्टोरियंस ने, जिन्होंने अब सूफीज़्म लाइक M.R. ईटन और दूसरे लोगों ने, राइट तो उन्होंने मजाक उड़ाना शुरू कर दिया इन उर्दू तस्करों की वजह से, क्योंकि इसमें आपको ज़्यादातर मिलेंगे कि वो सूफीज़ आए दक्कन, 700 मुरीद उनके साथ थे। मीर सईद अली हमदानी कश्मीर आए, 700 सूफी साथ थे। अरे भाई, कोई मीटर लगा हुआ था कि एग्जैक्टली 700 ही थे। जी कभी फिगर ऐसा नहीं हो सकती। जी 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 तो एक हिस्टोरिकल अकाउंट जो होता है वो एक हाँ, डिफरेंट तरीके से बिल्कुल। प्रोड्यूस किया वो होता है। 650, 51, 52, 53, 54 ये भी हो सकते हैं। तो उसका इन लोगों ने मजाक उड़ाया, अंग्रेज़ों ने, और ये जो मिरेकल्स वगैरह ये सब चीज़ें उर्दू तस्करा निगारों ने लिए, उसने सूफ़ी पूरी तहरीक को, पूरी सूफ़ी हिस्ट्री को बजाय प्रमोट करने के और डैमेज करने का काम किया। राइट सर, दिस हैज़ बीन अ वंडरफुल कॉन्वर्जेसन सर, बट बिफोर गोइंग अब मैं एक आखिरी सवाल आपसे करना चाहूँगा अपने स्टूडेंट्स के लिए, जो व्यूअर्स हैं, लिसनर्स हैं, कि अगर कोई यू बीन इन द फील्ड ऑफ रिसर्च फॉर द पास्ट 50 odd years, मोर देन दैट, सो अगर कोई सूफिज़्म के ऊपर रिसर्च करना शुरू कर रहा है, सो वेयर शुड ही स्टार्ट? उसको सोर्सेज पे जाना पड़ेगा, जितने तस्करे हैं, जी जितने मलफूजात हैं, जी, और जैसे आपने बताया कि वो पर्शियन जाना ज़रूरी है। तो वो तो बिल्कुल मस्ट है।
बगैर उसके आप सूफ़ी का स्वाद भी नहीं समझ सकते जब तक कि फ़ारसी नहीं आती, क्योंकि उनका सारा काम फ़ारसी में और या दक्कनी में, यहाँ दक्कन के सूफियों ने दक्कनी में काम किया और इतना काम किया, यानी दक्कन के सूफिया ने 91 किताबें औरतों की गाइडेंस के लिए लिखी। 91 उसमें यानी किताब आज़ाए निस्वा तक लिख दी कि औरतों का जिस्म क्या है, अमराज निस्वा, इनकी बीमारियां क्या हैं, जी उनकी दवाएं क्या हैं। दैट इज़ अ मैसिव कंट्रीब्यूशन। अगर आपको वो लैंग्वेज नहीं आ रही, पर्शियन अगर नहीं आ रही, तो आप उससे महरूम रहेंगे। जी बिल्कुल जी। सो थैंक यू सो मच सर, लाइक ऑलवेज आप आते हैं और यू एनलाइटन अस, यू एनलाइटन आवर व्यूअर्स, and thank you so much for being a part of this and for contributing so massively to this सूफीनामा। शुक्रिया। तो दोस्तों, सूफीनामा के इस एपिसोड में आज इतना ही। हम फिर मिलेंगे किसी और टॉपिक के साथ। बने रहिए हमारे साथ ऑन रेडियो मानू 90.0 FM। You were listening to सूफीनामा on रेडियो मानू 90.0 FM। चलो बात करके देखते हैं। आप सुन रहे हैं रेडियो मानो 90.0 FM। चलो बात करके देखते हैं।